محسوس کرتے ہوئے کیونکہ وہ اپنے وعدوں کے مطابق یہاں موجود ہے، اس کے بعد یہاں کے ساتھ ہیں، وہ برحق اور سچا خدا ہے۔ آئیے بڑی عاجزی کے ساری سے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہم جو انکل انور اور آنٹی ماریا کی خوشی میں شریک ہے، آئیے شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا کی پاک حضوری کو محسوس کیجیے۔ اور اس ساری عبادت کے لیے ہم سب خدا سے التماس کریں گے، خدا گرد و نواح کو، ماحول و فضا کو تیرے پاک کو ادھر ہاتھوں میں دیے دیتے ہیں، تاکہ خدا ہم سب تیرے لوگ ہوتے ہوئے آزادانہ طور پر تیری پرستش، تیری مدد سرائی کر سکیں۔ گرد و نواح کو تیرے پاک کو ادھر ہاتھوں میں دیے دیتے ہیں۔ شیطان کی ساری دیکھی اندیکھی چالاکیاں یسوع مسیح ناصری کے نام سے رد و فعل ہو جائیں۔ ہاللویا۔ اے خدا پاک رو، آج جنبش تو کر، چھولے ہر زندگی خالدہ بندے بھر۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ہم سب مل کر اے خدا پاک رو، آج جنبش تو کر، چھولے ہر زندگی آئیے اسی مسا میں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہاللویا ہاللویا، وہ یہاں موجود ہے۔ آئے ہم سب آج کی عبادت کے لیے خدا سے دعا کریں گے۔ خدا عظیم، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس موقع اس گھڑی کے لیے تو نے ہماری زندگیوں میں عطا فرمایا، تو نے ہم سبھی کو بلایا، اکٹھا کیا تاکہ ہم خدا تیرا نام خدا لے کر اپنے سارے کاموں کو شروع کرنے والے ہو سکے، کیونکہ خدا تیرا ہی درجہ اولین درجہ ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہمارے راستوں کو ہموار کرتا ہے۔ آج کی عبادت یسوع کے نام میں باعث برکت ہو خدا۔ جتنے خدا یہاں موجود ہیں، جتنے اس آواز کو سنتے ہیں، سبھی کو خدا
اور خدا کا یہ فضل عطا کرنا کہ ہم سب مل کر تیری پرستش کر سکیں، جس طرح تو نے یہ سایہ کی معرفت فرمایا کہ میں نے انہیں اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ میری پرستش کریں۔ خدا عظیم ہمیں استعمال کر، جس طرح تو لاویوں کو استعمال کیا کرتا تھا۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔ آئیے سب مل کے کہیں گے ہاللویا، ہاللویا۔ جانتا ہوں کچھ نئے گیت ہیں، آپ کو کاپی کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوگا، لیکن فالو کریں تو اچھا لگے گا۔ اسی طرح مل کر ایک آخری گیت گائیں گے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو قرآن کے کلام کے لیے تیار کریں گے اور خدا کے خادم سے آج کا کلام سنیں گے۔ گیت ہے جدو ویکھیاں طوفانی ایسی چھلا دعا چ ایسی ہاتھ چکے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، میرے ساتھ ضرور گائیے گا اس کو فالو کریں۔ جدو ویکھیاں طوفانی ایسی چھلا، جدو ویکھیاں طوفانی ایسی چھلا دعا چ ایسی ہاتھ چک لے، 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 جدو ویکھیاں طوفانی ایسی چھلا۔
आंखों को बंद करें, खुदा की बात हजूरी को महसूस करें। जमात में दुआ करने का मौका होगा। जिस किसी को खुदा का हिदायत करता है दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं, कर सकती है, मौका होगा। कदोस मेहरबान खुदा, जिंदा खुदा, लश्करों के खुदा, बादशाहों के बादशाह खुदा, हम तेरा दिलो दिल की गहराई से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंदा। ऐ बाप खुदा, इस मीटिंग के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु राजा। ऐ बाप, जब खुदावंदा तू अपने तख्त को लगा चुका है यीशु राजा, प्रस्तिश के वसीला से खुदावंदा, ऐ बाप खुदावंदा, तो अपने लोगों के गले आवाज़ों को छूना खुदावंदा, ताकि आज की प्रस्तिश खुदावंदा बहुत की मानित कबूल करना खुदावंदा, और प्रस्तिश के वसीला से हर तरह के बंधन, हर तरह के जुए यीशु के नाम से टूटते जाए, और खुदावंदा तेरे लोग खुदावंदा रिहाई पाने वाले बने यीशु राजा। और वापस पानी खुदावंदा, आपके कलाम में लिखा है, जिस घर में जो उस घर की सलामती चाहो, आज शाम खुदावंदा इस घराने के लिए तुझसे सलामती को मांग लेते हैं यीशु राजा। और खुदावंदा, जो घर जैसी नेमत बख्शी है खुदावंदा, अपनी बेटी को खुदावंदा, और खुदावंदा अपने में भरने का भी फजल देना खुदावंदा, ताकि हम रोज सच्चाई से खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने खुदावंदा, और सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिलने वाला बने यीशु राजा। ऐ बाप खुदावंदा, एक एक को छूना खुदावंदा, जो दूर और नजदीक से आए हैं खुदावंदा, एक एक को छूना खुदावंदा। जब खुदावंदा ये ठाए वक्त के मुताबिक अपने घरों को लौटे खुदावंदा, और रास्ते में इनकी हिफाजत की निगरानी करना खुदावंदा, और खुदावंदा बुरे हादसों से, बुरे लोगों से बचाना खुदावंदा, और सलामती से अपने घरों में पहुंचाना खुदावंदा। ऐ बाप खुदावंदा, तेरे कलाम के हिस्सा को भी तेरे आगे रख देते हैं खुदावंदा, तेरे खादा बंदा को तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावंदा। ऐ बाप, अपने आसमान को खोल कर खुदावंदा, ऐ बाप खुदावंदा, आज का कलाम जो खुदावंदा तो हमसे खुदावंदा बयान करने को है खुदावंदा, अपने खादम के वसीला से खुदावंदा, और बाप खुदावंदा ये कलाम का जो बीज बोया जाए आज खुदावंदा, ऐ बाप ये हमारी जिंदगियों में उगने वाला बने खुदावंदा, ये कलाम हमारी जिंदगियों में उगे और हम बहुत सा फल लाने वाले बने खुदावंदा। ऐ बाप खुदावंदा, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंदा, बख्श दे हम इस रोशनी में बढ़ते जाएं और तेरे कद के अंदाजे तक पहुंचने वाले खुदावंदा। ऐ बाप खुदावंदा, इस कलाम को समझने के लिए सेन और कबूल करने के लिए दिल अनायत फरमाना खुदावंदा, ताकि तेरे कलाम को अपने दिलों में रखे और बाप तेरे खिलाफ गुनाह ना करे खुदावंदा। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा, फिर से खुदावंदा पूरे माहौल को, पूरी मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं, तेरा रोब, तेरा दबदबा मांगते हैं यीशु राजा। हर तरह के इब्लीस के बांधे मंसूबों से खुदावंदा, ओ इब्लीस को शर्मिंदा करना खुदावंदा, और खुदावंदा हमारे इस घर में आना, आत्माओं के इस घर में आना भाई से बरकत ठहरे। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं, छूना बड़ी बरकत देना यीशु के नाम से आमीन। हम सब मिलकर एक और बहुत खूबसूरत गीत है, जिंद लाई यीशु में नावे असीम गुजोरिया। मुझे याद पड़ता है कि मारिया अक्सर कहते थे, जब हम प्रैक्टिस क्या करते थे तो रोक के कहते थे कि ये वाला गीत गाना है, ठीक है। हम सबको एक गीत आता है, जिंद लाई यीशु में नावे असीम गुजोरिया। जिंद लाई यीशु दे नावे, जिंद लाई यीशु दे नावे असीम कुछ होर जान दे, असीम कुछ होर जान दे। उन पठियां च सुट गया पावे, उन पठियां च सुट गया पावे, असीम कुछ होर जान दे, असीम कुछ होर जान दे।
उसने हम सभी को अपनी प्रस्तुति में इस्तेमाल किया है। वक्त हुआ जाता है कि हम अपना सारा ध्यान उसकी तरफ लगाएं क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए याद करें। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझे में खो जाएंगे, ख्वाबों के दरिया में हम डूब जाएंगे। आइए आप
आइए हम सब इसी मसा में अपने आप को बंद रखें, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है, वो हल मुश्किलात है, वो हमारे साथ है, उसके बाद हाँ के साथ है, वो बरहक और सच्चा खुदा है। इस इस्लाम को चाहूँगा खुदा के खादिम पास्टर खालिद अंजुम साहब से कि वो कलाम के लिए दुआ करें। खुदावंद आसमानी जलाली कुदूस खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा सारी प्रस्तिश के लिए जो तेरे पाक रूह की हिदायत से तेरे हुजूर में पेश की गई है। ऐ खुदा इस प्रस्तिश के नजराने को अपने हुजूर में मकबूल और मंजूर ठहरा, और नौजवानों के लिए खुदा जिन्होंने साल बजाकर गीत गाकर खुदा तेरी प्रस्तिश की, हाजिर जमात के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, नौजवानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अब जब एक खुदा कलाम का वक्त हो चुका है, तेरे खादिम को हम तेरे लहू में छुपा देते हैं। ऐ खुदा लफ्ज़ों की तरतीब और करीना अता फरमाना, ताकि जिंदा खुदा तेरा बंदा तेरे पाक रूह की हिदायत में बोले और सुनने वालों को एक खुदा कसरत की बरकत हासिल हो। खुदा अपने बंदे का तू मुंह भर जा, ताकि जिंदा तेरा बंदा जो कुछ बोले वो एक खुदा तेरी तरफ से हो, और तेरे लोग तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाने वाले हो। जब तक तेरा बंदा और तेरे कलाम को पेश करता रहे, ऐ खुदा को अपने बंदे की हिफाजत और निगहबानी करना, हमारी तवज्जो मुकम्मल तौर पर तेरी तरफ लगी रहे, मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन, आमीन। खुदा यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमारा खुदा जो बड़ा अजीम और बड़ा मेहरबान है, वो इस लायक है कि हम उसकी आमद में उसे कि हम उसकी ताज़ीम करें। वो इस लायक है कि हम उसे सजदा करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। आज का दिन, आज की शाम बड़ी अहम, बड़ी ख़ास है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा जब इंसान को खुशियाँ अता करता है तो ये जवाब है कि उसके लोग उस खुशी की शुक्रगुजारी करें। तो भाई अनवर और बहन मारिया को खुदा ने ये घर दिया है। मैं और आप सब अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और इसलिए कि वो वसाइल पैदा करता है कि उसके लोग अपने घर में रहें। कलाम में लिखा है अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है, यानी बेकार है। खुदा जब वादा करता है और वादे को पूरा करता है और पूरा कर सकता है, तो बनता है कि उसके लोग उसके हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी करें। मैं परस्तारों के लिए, तमाम बेटों के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर तरह से मदद की है, ताकि हम अपने खुदा की इबादत इस तरह कर सकें जिस तरह ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि हम दिल से अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें। मैं आए हुए मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जो बहनें बेटियाँ यहाँ बैठी हैं और जो भाई बाहर बैठे हैं, उन सब के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ जो दूर नज़दीक से यहाँ जमा हुए। मैं पास्टर खालिद अंजुम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने हमारा साथ दिया है, क्योंकि आज का दिन बड़ा मसरूफ या बड़ा बिजी होता है। वाली साहब ने बड़ा वक्त दिया है।
मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। तो अजीज प्यारी बहनों और प्यारे भाई, हमारा खुदा असीम खुदा है। जब हम अपने खुदा का जिक्र करते हैं तो हर जगह हमारी रबड़ी और रहनुमाई करता रहा है और कर रहा है। हम जब दूसरी कौमों को देखते हैं तो दूसरी अक़वाम में बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं। आपका भी और मेरा भी काफ़ी तजर्बा है। वो किसी काम के में लोगों को जमा करते हैं तो कहते हैं हम ख़त्म दबाने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? ख़त्म दबाने लगे हैं। तो ख़त्म का मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो वसाइल पैदा करता है, जिन्होंने कोई मेहनत की होती है। खुदा उनकी मेहनत को रंग लाता है और उन्हें बख्श देता है और उसके लोग खुदा के हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज की इबादत शुक्रगुजारी की इबादत है, थैंक्स गिविंग है। जब हम खुदा के हुजूर में थैंक्स गिविंग करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं तो उसे अच्छा लगता है। हम इंसान होते हुए छोटी छोटी चीजों से समझ सकते हैं कि हम इंसान होते हुए अगर कोई छोटा सा हमारा काम करता है और हम उसका जवाब शुक्रिया से नहीं देते तो वो दिल में नाराज होता है कि लो जी मैंने इसका काम किया है, ये दो लफ्ज भी नहीं बोल सका शुक्रिया। तो आज तो एक रिवाज है, उसमें लोग पढ़े लिखे हों या ना हों, एक लफ्ज सबको आता है, थैंक यू। क्या आता है? थैंक यू। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसका थैंक यू करते हैं क्योंकि वो लायक है कि हम उसके नाम को इज्जत देने का सबब बने। आए हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं जो शुक्रगुजारी के मुतालिक है। पहली तवारीख कलाम मुक़द्दस में से और उसका 16वां बाब है और उसकी 8वीं आयत है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। खुदावंद की बरकत उसके मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। थोड़ी देर के लिए हम कलाम पर ध्यान लगाए रखेंगे ताकि बात हमारी समझ में आए। हम बचपन से ये कलाम सुन रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है कि जो सुना हुआ कलाम हमारी जिंदगी में दोबारा से काम करता है। ये कोई नया कलाम नहीं है, मैं कोई नया कलाम कहीं से लेकर नहीं आया। ये खुदा का कदीम कलाम है, बहुत कदीम है, जो नबियों के वसीला से, अंबिया के वसीला से खुदा ने अपने लोगों तक पहुंचाया है, रसूलों के वसीला से। खुदा ये चाहता है कि मैं और आप इस कलाम को सुने। जब सुनते हैं तो ये कलाम हमारे लिए नया होता है, ये कलाम हमारे लिए नसीहत देता है, हमारी तकवीर करता है, हमारा साथ देता है। आपने सुना कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। कौमों के दरमियान उसका इश्तिहार दो। इश्तिहार का मतलब है मशहूरी करो। खुदा के कलाम की, खुदा की मशहूरी करो, उसका इश्तिहार दो। टीवी में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप देखते हैं कि तरह तरह के इश्तिहार दिए जाते हैं। उनमें इबादतों के इश्तिहार भी होते हैं, सेमिनार्स के लिए बातें होती हैं, इश्तिहार दिया जाता है। हर तरह से इश्तिहार दिया जाता है, यानी कि लोगों को बताया जाता है कि फलां प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कौन कर रहा है। वजह क्या है कि लोग जिस चीज की तलब रखते हैं वो चीज उन्हें मिल जाए, और जब वो मिल जाती है किसी प्रोग्राम में जाने वाले बहुत सारे खुश होते हैं और कुछ लोग परेशान भी होते हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिला, गाने वालों का स्वाद नहीं आया, कलाम का स्वाद नहीं आया, किसी बात की समझ नहीं आई। वजह क्या है कि आपका दिमाग वहां नहीं था, आपका ख्याल वहां नहीं था, आपकी सोचें कहीं और थी, आप जिस्मानी तौर पर यहां मौजूद थे उस प्रोग्राम में, लेकिन खुदा ये चाहता है कि हमारी तवज्जो उसके कलाम की तरफ रहे। जब तवज्जो रहती
करती है। तो ये बात है कि हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं जो हमारे लिए होता है। ये सारा कलाम सबके लिए नहीं होता, ये कलाम हर शख्स के लिए थोड़ा थोड़ा होता है और थोड़ा थोड़ा करके ये बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा, भाई अनवर के लिए, बहन मारिया के लिए, इनकी कोशिश के लिए जिंदगी में नसीब और फराज आते रहे। जिंदगी में ज्यादा नसीब आते हैं, फराज कम आते हैं, यानी कि गिरना ज्यादा होता है और उठना कम होता है। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि उन्होंने घर बनाया और वो घर टूट गया। ये कोई खुशी की खबर नहीं है। लाखों रुपए लगाए मेरे सामने और लाखों रुपयों का कुछ नहीं मिला, एक पाई नहीं मिली। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदा का कि इन्होंने अपने खुदा पर एतमाद रखा, कोशिश करते रहे, खुदा इनकी कोशिश में बरकत देता रहा और थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहे, जमा करते रहे, और वो जोड़ा हुआ आपके सामने है। खुदा ने फिर मकान दिया है। खुदा इस लायक है, आप खुदा को खुदा इस लायक है कि उसके लोग उसकी शुक्रगुजारी करें। ये मानने की बात है कि जब खुदा के लोग खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करते हैं तो कलाम में लिखा है उसे बहुत अच्छा लगता है, खुदा पसंद करता है और अपने लोगों को नेमतों पर नेमते और बरकतों पर बरकतें अता करता है। तो यहाँ एक बड़ी अहम बात है, शायद आपने गौर किया हो, और वो ये है, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। आप यहाँ कौमों के दरमियान हैं। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि आप यहाँ कौमों के दरमियान हैं, इश्तिहार है। आपसे पूछा जाएगा कौन है, आपके अकीदे के मुतालिक, आपके ईमान के मुतालिक, आपके निजात हिंदे के मुतालिक पूछा जाएगा। फिर आप बताएंगे कि हमारा खुदा, जिस पर मैं और हम सब एतकाद रखते हैं, यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा और खुदावंद मानते हैं। कौमों के दरमियान उसके कामों का बयान करना है, इश्तिहार देना है। तो कलाम में लिखा है कि खुदा हर तरीके से अपने लोगों की रहनुमाई करता रहा है, आज भी करने की ताकत रखता है। जब बरे सगीर में एक भी मसीही नहीं था, इस पूरे बरे सगीर में एक भी मसीही नहीं था, तो लिखा है कि खुदा ने वसाइल पैदा किए और अपने बंदे तोमा रसूल को इस सरजमीन पर भेज दी, और उसका लगाया हुआ पौधा बड़ा नहीं, बहुत पौधे हो गए हैं और फलदार है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी कि उसने अपने कलाम को बड़े सगीर में भेजा, जहां बहुत मुश्किल थी, जहां बहुत बुतपरस्ती थी, जादूगिरी थी, हरामकारी थी, खुदा से दूर थे, बड़े बड़े मजहब थे यहाँ पे। लेकिन हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने बंदे को, अपने शागिर्द को चुना और यहाँ भेज दिया, जिसका नाम तोमा रसूल, जिसको थोमा भी कहते हैं। अजीज प्यारी बहनों प्यारे भाई, शुक्रगुजारी के मुताबिक हमें यहाँ एक और बात मिली है जिस पर मैंने बात की है, और वो बात क्या है? कौमों के दरमियान उसका इश्तिहार देना है। जब आप उसके मुताबिक कोई बात करते हैं तो फिर आपसे सवाल होते हैं, आप डरे नहीं, शर्माए नहीं। अगर आपको पता है तो आप खड़क जवाब देंगे, और अगर आपको पता नहीं है तो सोचेंगे, परेशान होंगे कि हम जवाब के लिए बढ़ेगा कि कुछ नहीं। कोई आपकी जिंदगी कम नहीं कर सकता, बशर्ते कि आप खुदा की हिदायत के मुताबिक किसी को उसके कलाम का जवाब दें। बहस ना करें, क्या करें? जवाब। मुझे और आपको जानना है कि हमारा खुदा
जो अजीम खुदा है वो अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों की रहनुमाई करता रहा है और आज भी रहनुमाई करने की ताकत रखता है ताकि उसके लोग उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। जब हम अज़रा का सहीफा पढ़ते हैं उसके तीसरे बाब की 11वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि खुदावंद के घर की बुनियाद जब डाली गई, क्योंकि एक हैकल जो मुकद्दस सुलेमान ने बनवाई थी वो भी गिरा दी गई और उसके बाद इस हैकल को बनाने लगे और खुदा का खादिम अज़रा काहिन खुदा की तरफ से रहनुमाई में आया और लिखा है कि जब दूसरी हैकल की बुनियाद रखने लगे तो बेशुमार लोग जिन्होंने पहली हैकल को देखा था ज़ार रोने लग गए कि पहली हैकल कैसी थी, अब उसके बाद हम फिर शुरू करने लगे। तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था जो नई पौध थी, उनको क्या पता था कि क्या हुआ है, ये बाबे क्यों रो रहे हैं, ये बुजुर्ग क्यों रो रहे हैं, इनको क्या परेशानी है। उनको परेशानी किस बात की थी कि खुदा ने हमें घर दिया था और बुत परस्तों ने इसे गिरा दिया, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, दोबारा से इसकी बुनियाद रखी गई है। ये शुक्रगुजारी की बात है, ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि खुदा के घर को दोबारा तमीर करने के लिए शुरू किया गया, उसकी बुनियाद रखी गई। अजीज प्यारे बहनों प्यारे भाइयों, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो वक्तन फवक्तन लोगों से कलाम करता रहा है और स्पेशली इस बात के लिए कि उसके लोग उसके इख्तियार में हैं, उसकी हथेली के नीचे हैं, उसकी पनाह में हैं, वो अपने लोगों को संभालता है और वक्त पर उन्हें सरफराज करता है, जल्दी से नहीं, वक्त पर। बहुत से लोग जल्दी से सरफराज होना चाहते हैं, जल्दी, ये नकल करने से नहीं होता, ये कोशिश से होता है और दूसरे नंबर पर खुदा की ताबेदारी में होता है। जब आप खुदा की ताबेदारी में आ जाते हैं, जिस तरह आपके सामने मिसाल है, एक घर जब टूटता है दोबारा नहीं बनता, वक्त लगता है। मैं अपनी गवाही यहाँ शेयर करूंगा। सन 94 में फ्यूचर कलोनी में मैंने घर लिया और वो घर जल्दी से मेरे हाथ से निकल गया। मेरे घर वालों को भी पता चला, हम दोनों थे, मेरी बीवी को भी नहीं पता चला, वो फाइल में दे आया, वो हमारे पैसे भी गलत हो गए और साथ ही घर भी हमारे हाथ से निकल गया। उसके लिए हमें कमो बेश 24 से 25 साल लगे घर दोबारा हासिल करने के, वो नहीं और जगह। तो अजीज प्यारे बहनों प्यारे भाइयों, हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने लोगों को रहने के लिए घर दिया है और इसके लिए हम बड़ी खुशी करते हैं, बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और कौमों में इस बात का इश्तिहार देने के लिए तैयार। कौमों में इश्तिहार आपको पता है कैसे कैसे पहुंच जाते हैं, शायद आपको मालूम हो। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो घरों में काम करती हैं, इनके वसीले से भी इश्तिहार चला जाता है। पता है आपको किसी बात का? बहुत सी पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, कराची में बड़े वाकयात हुए, जहाँ काम कर रही है वहाँ को बहन को भाई को बुजुर्ग बीमार है, उनको पैगाम दे दिया। ऐसा भी होता है, आप ऐसा करके तो देखें। लेकिन पहले तो हुआ है, इस्राएल की 12 साल की बेटी किसी घर में, जन्नत के घर में गुलाम है, तो वो बेटी अपनी मालकिन को क्या कहती है, मालिकिन अगर मेरा मालिक इस्राएल में होता तो कोड़ी इतना इत्मीनान है उसे अपने खुदा पर। कर क्या कर रही है? गुलामी कर रही है गैर कौम की। जंग में पकड़ी गई, ले आए और घर में उसे गुलाम बना दिया। तो उसने कहा अगर मेरा मालिक इस्राएल में होता तो कोड़ी। आपने सुना, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, बड़ी कहानी है, सबक आमोज है। ये कहानी घड़ी गढ़ाई नहीं है, ये हुआ वाकया है। तो लिखा है कि उसने अपने खामद से बात की और वो फौज का जर्नल है, सिपहसालार है,
तो लिखा है कि जब वो इसराइल में गया तो इसराइल के नबी ने ऐसे बाहर जाके नहीं देखा, जब वो बाहर आ गया पूरा लश्कर उसका इस्तकबाल करने के लिए, उसको मिलने के लिए, तो क्यों जी एलीशा साहब निकले बाहर, यहाँ से यानी कि ऐ का लोग हुआ कि बाहर पूरा पुरीचल खड़े आ जाना चाहिए, पूरा काफिला है, उसके लिए बेशुमार तहाइफ हैं, हाथियों पे, घोड़ों पे, ऊंटों पे लदे हुए, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं गया। अपने शकील से कहा इसको बोल दरिया यरदन में कितने गोते मारने हैं? 7। दरिया यरदन में 7 गोते मार, तू ठीक हो जाएगा, तू निकल चल। मैं पादरी साहब से माजरत करते हुए बात करूंगा, क्योंकि मैं भी खादिम हूँ, वो भी खादिम है, ज्यादा नहीं, लेकिन अक्सर देखने में जाता है कि कोई पैगाम मिलता है तो भागते जाते हैं। ऐसा समझे नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, खादिम की कदर में फर्क आता है। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे फिर बातें भी करते हैं, जब उन्हें बुला लेते हैं तो बाद में उन पर बातें भी करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन लिखा है कि जब वो रास्ते में गया तो उसको गुस्सा था, किसको? नुमान गोरी को गुस्सा है। उसने कहा कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में दरिया फरात फर बहता है, मैं उसमें नहा नहीं सकता, मैं नहीं नहाता। लोगों ने कहा मालिक, अगर ये तुझे कुछ और करने को कहता तू ना करता, करके ट्राई कर, ट्राई कुछ नहीं कहती, ट्राई तो करके देख। तो लिखा उसकी बात समझ में आई, उसने अपने वो कपड़े तब्दील किए, दरिया में गया। किस में गया? कौन से दरिया में? 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो उसका जिस्म कैसे हो गया? बच्चे के जिस्म के माने मुलायम। सो एक गवाही जाती है और उसके बाद एक शुक्रगुजारी पैदा होती है। तो अजीज प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, हमारा खुदा बड़ा अजीज, वो इस लायक बनाता है कि मैं और आप जहां बैठे बातें तो करनी होती हैं, कोई ऐसी बात करें और ऐसी बात कलाम में से करें और सुनने वाला आपकी बात पर कान रखे, ख्याल करे, बहन क्या बात आपने कही है। आपकी सहेलियां पूछें, आपके रिश्तेदार पूछें, आपके वाकफदार पूछें, भाइयों से पूछें, जिससे पूछें। कलाम में लिखा है जब कोई तुझसे पूछा जाए तो बताने के लिए तैयार रह, मुस्तैद रह, ये नहीं स्टडी नहीं, क्या करना है? तैयार रहना। तो ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है जिसे खुदा पसंद है मेरे और आपके लिए। खुदा यीशु ने अपने हाथ ऐसे खोले हुए, ऐसे सलीब पर देने का कोई मकसद है। हमारा कोई अजीज अरसे के बाद मिलता है, मुंतसी अंकल के बगल की इन्होंने एंज करके, तो पहले अक्सर आज भी ऐसे मिलते हैं, एंज करके एंज मिली है ना, फैशन हो गया ना, ये फैशन है। मिलना ये नहीं है, ये याद रखें। ऐसे मिलते हैं, उसमें और इस मिलने में फर्क होता है। ये उनको भी मिला जाता है जो आप जिनको बिल्कुल नहीं जानते, खाना पूरी करने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। लेकिन जब आप किसी को सीने से सीना लगा के मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर किसी के लिए जगह है। और फिर इसको आप ये नहीं देखेंगे लोग हैं, गली है, बाजार है, क्यों नहीं शर्माएंगे कि आपके अंदर गुनाह नहीं है। जब गुनाह होगा तो फिर क्या होगा? फिर हम इधर उधर देखते फिरेंगे। वो लोग जिनको ये तलाश होती है। अजीज बहनों और भाई और बच्चों, ये याद रखने की बात है कि हमारा खुदा चाहता है कि हम पाकीज़गी में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें। कैसी पाकीज़गी? खुदा पाकीज़ा लोगों से प्यार करता है। जब हम थलस्सीकियों का खत पढ़ते हैं 5वां बाब उसकी 18वीं में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी। कौन सी बात में जी? हर एक बात में, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। खुदा की यही मर्जी है कि उसके लोग उसकी शुक्रगुजारी करें और उसकी ताज़ीम करें। और गैर कौमें
इन बातों से मुतासिर होती है, हैरान होती है, ये क्या चक्कर है भाई, इनके लिए इतना कुछ हो रहा है, इतने परेशान है, उसके बावजूद भी किसी का शुक्रिया अदा करते हैं। वो इस लायक है इसलिए कि वो हमें संभालते हैं। शुक्रिया एक दफा फिर मेरी तरफ से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, और भाई अनवर को और बहन मारिया और उनके बच्चों को इस नए घर के इस लायक शुक्रिया जी एक दफा फिर आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, कलीसिया की तरफ से, भाई अनवर को, बहन मारिया को, आप सबको ये नया घर बहुत बहुत मुबारक।